Our chief guest has arrived. The Deputy Chief Minister is here. He'll be joining us very shortly. Namo Buddhaya. A warm welcome to the International Conclave on Buddha Dhamma and the Culture of Northeast India, organized by the International Buddhist Confederation, New Delhi, and with complete cooperation at the ground level from the government of Arunachal Pradesh and all Buddhist organizations of Namsai. Northeast India, comprising Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura, has been a significant center for Buddhist traditions, monastic culture, and heritage. This region, Arunachal Pradesh in particular, has preserved and propagated various Buddhist traditions, including Theravada, Mahayana, and Vajrayana. Over the years, Buddha Dhamma played a crucial role in shaping the cultural and spiritual landscape of India, particularly in the northeast region of India. The spread of Buddha Dhamma in northeast India can be traced back to ancient times, influenced by the Mauryan Empire, local rulers, and interaction with neighboring Southeast Asian countries, which is evident in the region's monastic institutions, art forms, festivals, and socio-political structures. Sangha members, dignitaries, ladies and gentlemen, the values enshrined in the ancient Indian wisdom are timeless guiding principles to govern and lead the life of harmonious coexistence. Following this inaugural session, this international conclave entails 3 panel discussions on historical relevance, art and culture of the region, and cultural impact of the Buddhist diaspora in the neighboring countries. We look forward to their presentations today. And on that note, I request our venerable monks to invoke Lord Buddha amidst us through Mangala Charan, while the following dignitaries are requested to please come on stage, light the lamp, and offer flowers to Lord Buddha. Our Dhamma speaker today, Most Venerable Agga Dhamma Bhadanta, Chief Abbot of the Pariyatti Sasana Buddha Vihara, Namsai. Our chief guest today, Shri Chauna Min, Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Guest of honor, Honorable Shri Zignu Namchum, Member of Legislative Assembly, Namsai. Special invitee, Mr. Jigme Thinle Namgyal, Consul General of Bhutan in Guwahati, and hosts of today's program, Shatse Khensur Jangchup Choden Rinpoche, Secretary General of IBC, and Shri Abhijit Haldar, Director General of IBC.
Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mô tu te jaya mangala
वज्रेण सब्बभाया विनाशतु एतेन सच्च वज्रेण सब्बरोगा विनाशतु एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्च वज्रेण पातु ते रत्नत्रयम् साधु साधु साधु। Thank you, Venerable monks. I now request our Secretary General, Shatsek Khensur Jangchup Shoden Rinpoche, to please welcome our honorable dignitaries today with the Khatak. Our Dhamma speaker, Most Venerable Agga Dhamma Bhadanta, Chief Abbot of the Pariyatti Sasana Buddha Vihara, Namsai. Our chief guest today, Shri Chauna Min, Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Our guest of honor today, Shri Zingnu Namchum, Member of Legislative Assembly, Namsai, Arunachal Pradesh. And our special invitee, Shri Jigme Thinle Namgyal, Consul General of Bhutan in Guwahati. Rinpoche, may I please request you to deliver the welcome address. अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम नानार्थम नागमम निर्गमम यह प्रतीत्य समुत्पादम परपंचोपशमम शिवम देश्यमास संबुदस्तम वंदे वदताम वरम। भगवान बुद्ध जी के चरण में अपने शीश को झुकाकर और उसके साथ भगवान बुद्ध के स्तोत्र जो कि हमारे बहुत ही चहेते आचार्य नागार्जुन वगैरह द्वारा लिखा गया है, उसका उच्चारण करते हुए मैं इस वक्ता का शुरुआत करना चाहता था। और आगे आज का ये दिन बहुत ही खुशी और संतोष का दिन है, क्योंकि हम यहाँ पर नामसाई जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पे बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक बहुत ही विशेष तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन बुद्ध धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वैसे अभी आपने हमारे एमसी को सुना है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया, और वैसे आप लोग सब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मगर इस तरह का ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कार्यक्रम है, तो इस विषय पर मैं भी कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। भारत बुद्ध की भूमि है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं हो सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो बुद्ध की भूमि होने के साथ साथ
भारत में बौद्ध धर्म का जो एक विरासत रहा है वो अपने आप में एक सराहनीय विरासत है। विडंबना यह है कि भारत में बौद्ध विरासत बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन विलुप्ति के कागार पर चला गया था, मगर अब भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है। तो इस खुशी में हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं भारत सरकार का, जिन्होंने बरसों से भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए बहुत कार्यक्रम चलाए हैं। आईबीसी इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मुहिम है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जिसके माध्यम से भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हम दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम कर चुके हैं। पिछले 11 वर्ष के अपने इतिहास में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और हमने भारत के कोने कोने में इस तरह के कई कार्यक्रम किए हैं। लद्दाख से लेकर आज का ये अरुणाचल का कार्यक्रम हुआ, तो पूरे जो भारत के दक्षिणी जो हिमालयन एक क्षेत्र है उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों का फल हमें मिल रहा है और भारत में बौद्ध धर्म के प्रति जो जागरूकता है वो आगे से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अब इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर करते हुए हम अपने अतिथि गणों का भी स्वागत करना चाहते हैं। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम स्वागत करना चाहते हैं। तो इस कड़ी में पहली बात तो हमारे यहाँ पर की नोट स्पीकर मोस्ट वेनरेबल आग धम्म भदंत चीफ एबट ऑफ परियति शासन बुद्ध विहारा नामसाई हैं। मैं उनका तहे दिल से, दिल के हृदय की गहराई से यहाँ पर उनके आगमन पर उनको बधाई देना चाहता हूँ और हम खुश हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकालकर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हमारे साथ आए। तो आगे दूसरा मेरे यहाँ पर अतिथि का नाम है स्पेशल इनवाइटी मिस्टर जिग्मे ठिनले नामगिल, कौंसल जनरल ऑफ भूटान इन गुवाहाटी। मैं उनका भी दिल के गहराई से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए और हमारे साथ उनका बहुमूल्य वक्त बिताए और हम उनके वक्तव्य को सुनकर उनसे बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। और आगे द गेस्ट ऑफ ऑनर, आज के इस सभा का गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर जिंगनू नामचुम एमएलए नामसाई, अभी हम मिले हैं और मैं एमएलए साहब का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुमूल्य वक्त निकालकर हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में शोभा बनाने की आपने कृपा की। आपको भी धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और आगे हमारे चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस सभा का चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हैं श्री चोनामेन ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से, दिल की गहराई से आपके उपस्थिति के लिए हम बहुत ही आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। तो आगे मेरे सामने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय गण हैं और भिक्षु संघ हैं, तो और हमारे भाई और बहनों यहाँ पर जो जितने भी उपस्थित है, आप सबको भी दिल की गहराई से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो इसी के साथ आगे ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यहीं पर विराम देकर अपने स्वागत और अभिनंदन भाषण को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।
Thank you, Venerable. It is my privilege to now invite Most Venerable Agadhamma Bhadanta, Chief Abbot of the Pariyatti Sasana Buddha Vihara in Namsai, to deliver the Dhamma address of the International Conclave. Respected उपस्थित भिक्षु संघ, साथ में रिम्पोची आईबीसी के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में हमारे भिक्षुनी एमिनेंट जितना भी भिक्षुनी उन लोगों को भी अभिवादन और रेस्पेक्टेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए साहब, साथ में जितना भी डिग्निटरी सभी लोगों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। अभी मुझे एक शब्द दिया, अभी चांस दिया कि यहाँ पे ये धर्म के विषय कुछ बोलने के लिए मुझे आईबीसी वाले लोग रिक्वेस्ट किया था। इसलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट में ये बुद्धिस्ट, हम लोग थेरावादा बुद्धिस्ट है। इसीलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द टेकिंग ए ग्रेट डिसीजन टू ग्रांट क्लासिकल language studied to Pali language. This recognition highlight Pali literary important. Pali is a Magadhi ancient language. It is the voice of Buddha teaching, the foundation of century of wisdom, compassion, sympathy, unity and peace. ये हमारे हिंदी से अरुणाचल में जितना भी हम लोग थेरावादा बुद्धिस्ट है, हम लोग निर्वाण को ही प्रार्थना करते हैं, विश करते हैं। तो निर्वाण को विश करने के लिए हम लोगों के बीच में इतना जाति, इतना ट्राइब है, उस डाइवर्सिटी पे है। जैसे कि पाली में कहते हैं कि मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सी में लविंग काइंडनेस, कंपैशन एंड सिंपैथी एंड इक्वानिमिटी। कंपैशन और सिंपैथी को ब्रह्म विहार भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो बुद्धिस्ट लोग जो भी हो, ये इस धर्म को, जब बुद्ध का जो पाली का वर्ड, बुद्ध का जो उपदेश को जो पालन करते हैं, वो जो है कभी भी दूसरों के बुराई के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, कभी मुख से या दिल से भी कभी किसी को बुराई नहीं सोचता है। इसका वजह से वो जो लविंग काइंडनेस, साथ में कंपैशन, सबको दया और ममता, जैसे हम लोग कहते हैं, सबको सिंपैथी, सबके बराबर, कोई भी आगे बढ़ता है तो उसको प्रशंसा करके उसको होता है। तो ये चीज़ हम लोगों के बीच में ये डाइवर्सिटी है। तो ये हम लोग ये बुद्धिज्म में तो मीनिंग ऑफ
तो इसमें हम मानते हैं कि द वर्ड ऑफ अभिधम्मा मीन द हाईएस्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा. It is deal with four ultimate reality, paramatha, which comprise consciousness, chitta, mental, concomitant, cetasika, matter, rupa, and extension of fire of lust, delusion, hatred, and discrimination, craving, nibbana. यही हम लोग यहाँ बुद्धिस्ट यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का जो थेरावादा आपका जो आसाम से लेकर इधर जितना भी नॉर्थ ईस्ट का बुद्धिस्ट थेरावादा सेक्ट वाले लोग ये मानते हैं कि सब ये कोशिश किया जाता है. और वर्षावास के जो हम लोग का रेनी सीजन में जब वर्षावास होता है उस समय जितना भी उपासक उपासिका है मंदिर में, फुल मून डे में, वैक्सीन डे में, तो सब लोग आते हैं अमावस्या में मंदिर में धर्म सुनने के लिए आते हैं और पालन करते हैं. ये जैसे कि पाली मतलब पालन करता है जैसे. तो इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जो पाली को इस क्लासिकल के रूप में ये लैंग्वेज को आगे बढ़ाया कि एवरी सब जगह ये एक क्लासिकल इसको पालन करने के लिए जो उत्साह जो बढ़ाया कि ये फर्स्ट टाइम सुना. इसके वजह से ये हम लोग बहुत खुश हैं. स्पेशली मेरे तरफ से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उसे. और ऐसे और अभी रेम्पोची जी ने जो कहा अरुणाचल में जितना भी बुद्धिस्ट जो है अभी तक जीवित है. बुद्ध काल में कोई भी अरहत कोई भी ज्ञानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के तरफ कभी भी स्टेप नहीं किया. लेकिन हम लोग यहाँ के लोग जितना भी कोशिश करते हैं बुद्धा बुद्धि से लेकर के सब जवान लोग सभी लोग यूनिटी के साथ जो बुद्ध धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये इनडायरेक्टली ये बुद्ध धर्मों को हम लोग पालन किया. इनडायरेक्ट मतलब जितना भी बुद्धिस्ट से थेरावादा है ये है म्यांमार होते हुए ये धर्म यहीं पर आया. एक्चुअली बुद्ध गया से बुद्ध धर्म म्यांमार गया. लेकिन हम लोगों के लिए ये क्योंकि ज्ञानी जो अरहत लोग भिक्षु लोग ज्ञानी जो वो सब ये लोग यहाँ हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे कभी भी स्टेप नहीं किया कभी भी कर नहीं रखा है. फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग लिंक करते हैं कि बुद्ध गया से हम लोग यहाँ से हम लोग कोशिश करके बुद्ध गया में लिंक करते हैं. तो इसलिए आज अभी वहाँ आना जाना इस बार जो आएगा जो इस साल जो दिसंबर महीना में त्रिपिटक चांटिंग जो करेगा उसमें 1 दिसंबर 2 दिसंबर उसके 8 दिसंबर उसका जो अन्नदान जो है हमारे ये नामथाई की तरफ से अरुणाचल की तरफ से हम लोग लीड करेंगे. उसमें ये अन्नदान में जो सहयोग देने वाला मेन जो है चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में हॉनरेबल एमएलए चाउ जिंगनू नामचोम वो लोग लीड करके हम लोग सभी लोग मिल करके ये दिसंबर महीना में त्रिपिका चांटिंग में भी हम लोग ये अन्नदान में वो कोशिश करें कि हम लोग विश्वास करते हैं कि दान देने से दान मिलता है पुण्य मिलता है. दान का जो है हम लोग इतना तो विश्वास करते हैं कि हम लोग जो पुण्य करता है वो पुण्य जो है वो स्वर्ग तक पता सुनाई पड़ता है. हम लोग ये समझ में आता है कि हम लोग ये विश्वास करता है कि दान और सील अगर पालन करेगा तो ये भी वो ब्रह्मा लोग तक सुनाई पड़ता है. और जैसे कि भावना दान शील भावना ये भावना जो करने से मेडिटेशन करने से जो मेडिटेशन का जो सच्चे दिल से सच्चे चित्त से अगर मेडिटेशन करेगा तो ये जो भावना जो है निर्वाण तक सुनाई पड़ता है. ये हम लोग बिलीव करके हमारे दायक दायिका यहाँ के पब्लिक यहाँ का भांति लोग ये इसलिए कोशिश करता है कि ये बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना है करके
अभी जितना भी अरुणाचल में पहले इतना मंदिर नहीं था, ये सब सारा जैसे आपको चांगलांग में, आपका जो जोरामपुर साइड में, रीमा साइड, उधर का जितना भी बुद्धिस्ट हुआ, और जितना अरुणाचल में यहाँ पे जितना भी जो मंदिर हुआ, जो सब बुद्धिज्म जो बढ़ रहा है, वो चीज़ से उसका जो है हम लोग, हमारे यहाँ का डिप्टी सीएम, एमएलए साहब, साथ में चीफ मिनिस्टर, जितना भी मिनिस्टर है, सभी लोग ने सहयोग दिया, सभी लोगों का राय वो लोग मदद किया। इसका वजह से हम लोग आगे बढ़ा पाए, क्योंकि हम पब्लिक के पास, हम लोगों के पास ये इतना वो धन भी नहीं है, इतना भी आगे बड़ा बड़ा मंदिर बनाने के लिए इतना शक्ति भी नहीं है। फिर भी ये मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट ने मदद किया, इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिस्ट को ही सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है सब धर्मों को मदद करता है। जैसे आपको हिंदू मंदिर हो, क्रिश्चियन का चर्च हो, चाहे जो आप जो आदिवासी हो, जितना भी इंडिजिनस का जो धर्म जो मानता है, उन सबको भी मदद करता है, हर जाति को। हम लोग में ये बुद्धिस्ट जो है अरुणाचल में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो ये नहीं मानता है, सबको बराबर। जैसे बुद्ध का वाणी, बुद्ध का उपदेश के अनुसार हम सभी लोग ये सबको यूनिटी, स्पेशली अभी हमारे मंदिर में जितना भी लड़का है, कोई भी जाति हो, कोई भी जाति हो, आ सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बन सकता है, उसको नॉलेज मिले, ये हम लोग कोशिश करते हैं। और इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करते हम लोग। तो इसीलिए जो भी अच्छा काम करता है उसको तो थोड़ा बहुत तो कष्ट तो उठाना पड़ता है, वैसे ही होता है। तो इसीलिए ये जितना भी जो यहाँ जो ये हम लोग अभी इस हॉल में, मल्टीपर्पल हॉल, इसमें हम लोग कॉन्फ्रेंस आईबीसी, जो आईबीसी सब फर्स्ट आरंभ किया था आपका दिल्ली में हायट होटल में, उस समय लामा लॉबजांग जी लीड कर रहा था। उसमें फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें इधर अरुणाचल की तरफ से, दूसरा कोई भी नहीं किया था उसमें। फिर भी अभी इतना साल के बाद 2025 में आईबीसी खुद नामसाई में आ करके यहाँ अपना यहाँ पर ये फंक्शन चला, इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ ये आईबीसी वाले लोगों का। भविष्य में भी ऐसे करेगा तो आदान प्रदान करेगा, तब ये डाइवर्सिटी जो है, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो कहते हैं, लविंग काइंडनेस, कॉम्पेशन और सिंपैथी, इक्वानिमिटी, वो चलना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। बेकार में हम लोग आपस में जात पात लेकर के लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को हिंसा बाजी, वो सब नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म में बुद्ध ने तो ये शिक्षा दिया, इसके वजह से यहाँ का बुद्धिस्ट, यहाँ का थेरावादा, हम सभी लोग एकजुट एक है। हम सभी लोग भविष्य में भी ऐसे हम लोग कहीं पर यहाँ नहीं होने तो कहीं पर कोई जगह में ऐसे फिर भेंट होगा, यही आशा करते हुए मेरा वक्तव्य, मेरा धर्म यही पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Bhantaji. Dissemination of Buddha Dhamma refers to the spread of Buddha's teachings beyond India to other Asian countries. It involved translation of scriptures, establishment of monastic communities, and adaptation to local cultures, as also facilitated the development of different Buddhist traditions. The International Buddhist Confederation is proud to present an in-house production of a short film on dissemination of Buddha Dhamma in Asia. I request